we are going to target unit number 4, that is database management system, and success is yours. Just be confident, you can qualify the exam. Because when we talk about the preparation, any preparation does need only 3 things. Content coverage should be there, then practice should be there, एंड देन रिवीजन शुड बी देयर. ठीक है, तो कंटेंट तो हमने पहले ही कवर किया हुआ है. नाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन. सो डेफिनेटली ऑल 3 फैक्टर्स वी हैव कवर्ड, सो व्हाई टू वरी. ठीक है, डेफिनेटली सक्सेस इज आवर्स. वी विल क्वालिफाई द नेट एग्जाम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग बबलू सर. Let's start with the simple numerical. Given relation R, A, B, C, D, E, F, G with a following 5 functional dependency given, what is the candidate key of R? Candidate key for R we have to calculate. Candidate key. How to do this calculation? कैसे calculate करते हैं? Candidate key. What will be the answer? A can determine BC. What are the mandatory element? First of all, find out the mandatory element. So how do we find out the mandatory element? We check the right hand side. We check the right hand side. So BC is present on the right hand side. CF is present on the right hand side. Then E is present on the right hand side. F is present on the right hand side. G is present on the right hand side. So the mandatory element is AD. Now find out the closure of AD plus. Find out the closure of AD plus. So AD, A can determine itself, A can determine BC, and it can determine D as well. Now you have B can determine E, and E can determine C and F, and CD can determine EF, and A can determine G. So now I have all the attribute present here. So AD is the candidate key. वैसे भी elimination से करते, so AD are the mandatory element. So BD possible नहीं है, CD possible नहीं है, FD possible नहीं है. Good morning everyone. अंकित सर, बहुत दिनों बाद. How's your preparation? This is from the your B tree concept. ठीक है, B plus tree concept is given here. Actually क्या है, जो B plus tree है, B plus tree का ये जो न्यूमेरिकल है that is from the data structure. But B plus tree concept आप दोनों जगह ही पढ़ते हो, database and database management system. In database management system B tree we use as a इंडेक्स एलिमेंट. ठीक है, यहाँ आप मल्टी लेबल इंडेक्सिंग के लिए बी एंड बी प्लस ट्री का यूज़ करते हो, मल्टी लेबल इंडेक्सिंग के लिए. ठीक है, सो बट हाँ, ये न्यूमेरिकल बी प्लस ट्री का है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया इसको. व्हाट शुड बी द आंसर? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. चलिए, सो टुमारो वी विल सॉल्व 2020 पेपर. चलिए बताइए. The order of internal node of B plus tree index is the maximum number of children it can have. Suppose the child pointer takes the 6 byte. Child pointer, that is child pointer. क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? Child pointer is equal to the block pointer. Child pointer is equal to block pointer. अच्छा जी सर, कोई बात नहीं है, अभी कंटिन्यू करिए लर्निंग. सर्च फील्ड वैल्यू, मीनिंग इज दैट सर्च की का साइज दे रहे हैं. सर्च की इज इक्वल टू 14 बाइट एंड द ब्लॉक साइज इज गिवन. ब्लॉक साइज इज गिवन इज 512.
एक चीज़ और देना होना, चाइल्ड पॉइंटर दिया है, सर्च फील्ड दिया है एंड द ब्लॉक साइज इज गिवन। इंटरनल नोड पूछा गया है, इंटरनल नोड पूछा गया है और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड। एक्सटर्नल नोड नहीं पूछा है, ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं गिवन है, ठीक है। चलिए बताइए व्हाट विल बी द आंसर। कर रहे हैं सॉल्व। इन फॉर्मूलाज को मत भूलिएगा, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है हमको। ये तो मतलब विद इन सेकेंड वाले प्रैक्टिस में लेकर आइए इनको, ये तो कंपलसरी न्यूमेरिकल है जो पूछे ही जाते हैं। इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड, नहीं बन रहा। सो फॉर द इंटरनल नोड व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है। इंटरनल नोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ब्लॉक साइज शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ n-1 कीज आर देयर, सो नंबर ऑफ ऑर्डर -1 नंबर ऑफ कीज विल बी देयर, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे की साइज से एंड हाउ मेनी चाइल्ड पॉइंटर विल बी देयर, since it is an internal node so the order of or the number of child node will be n, that is equal to order, so n into the child pointer, multiply कर दीजिए and solve करेंगे, you will get 26, ठीक है। प्रथम मैम ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ठीक है, ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए आप क्या लिखते हो, ब्लॉक साइज, जो टोटल ब्लॉक साइज होगा वो कितना होगा, ब्लॉक साइज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज द ऑर्डर इज n, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ कीज होती हैं किसी भी इंटरनल नोड ऑफ B+3 में दैट इज इक्वल टू n-1। इफ ऑर्डर इज n तो नंबर ऑफ की कितनी होगी, n-1 होगी। अब यहाँ पर आपको दिया गया है सर्च की का साइज, तो अब हम की साइज को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हर एक इंटरनल नोड में यहाँ पर चाइल्ड पॉइंटर भी होते हैं, चाइल्ड पॉइंटर और द ब्लॉक पॉइंटर टू द चाइल्ड नोड। सो कितने चाइल्ड पॉइंटर होंगे, कितने चाइल्ड पॉइंटर होंगे, दैट विल बी इक्वल टू n। यदि ऑर्डर n है तो चाइल्ड पॉइंटर कितने होंगे, n। सो चाइल्ड पॉइंटर की साइज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए n से। सो दिस इज योर फॉर्मूला, n-1 इंटू की साइज plus n into child pointer and put the value and then you have to do the calculation, ठीक है। सो ब्लॉक साइज कितना दिया हुआ है, ब्लॉक साइज दिया हुआ है 512, n-1 की साइज दिया है यहाँ पर 14 and the pointer is and the child pointer is given 6। जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, you will get 26। यहाँ एक्चुअली साइन क्या चल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये आपका लेस देन इक्वल टू चलेगा, एन आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ना, एन लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो एन के लिए ये चीज़ चलेगी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो हम यहाँ पर फ्लोर वैल्यू लेंगे, ठीक है, हम यहाँ फ्लोर वैल्यू लेंगे। चलिए ये फॉर्मूला है, इस पीपीटी में आपको हमेशा मैंने शेयर किया हुआ है इंटरनल नोड के लिए और एक्सटर्नल नोड के लिए। यही क्वेश्चन एक्सटर्नल नोड पर भी बनता है। अच्छा, और यदि यही क्वेश्चन आपको बी ट्री के लिए पूछा जाए, यदि यही क्वेश्चन आपके लिए बी ट्री के लिए पूछा जाए तो वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल नोड का फॉर्मूला सेम रहता है। ये तो एग्जाम्पल है, आप रीड करिएगा, ठीक है। चलिए व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस, अब प्राइमरी की, वैसे मैंने सेपरेट सेशन लिया हुआ है बी एंड B+3 पर, वहाँ काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, आप देख सकते हो, स्पेशल क्लास होगा, ठीक है। नाउ सी, अ प्राइमरी की इफ कंबाइंड विद द फॉरेन की इट क्रिएट्स, व्हाट शुड बी द आंसर, parent child relationship between the table of the and that connect them, many to many relationship between the table that connect them, network model between the tables that connect them, none of these,
primary key and its foreign key. When primary key is combined with the foreign key, it create the parent child relationship. It create the parent child relationship. Very good. Okay. Which of the following is the key factor for preferring B tree to a binary search tree for indexing the database relation? ठीक है, which of the following is a key factor for preferring B plus tree in a binary search tree for indexing database relation? अभी मैंने आपको बताया था कि B and B plus tree are used for the multi-level indexing into the database management system. So database relation have the large number of record. Database relation are sorted on the primary key. B tree require less memory than the binary search tree, and data transfer from the disk is in the block. ठीक है, what is the reason? What is the reason why we are using the B tree? ठीक है, B tree over B plus tree. Why we are using the B tree over binary search tree? Over the binary search tree. Database relation have the large number of record. Database relation is sorted on the primary key. B tree require less memory. Data transfer from the disk in the block, and all the data are available at the leaf. ठीक है, over the different index. B tree बोल रहे ना, over the different label. So by if you have blocks, you can directly transmit the block from the disk to the memory or the device. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे? आंसर इज डी, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्क इज इन ब्लॉक. आप यहाँ ब्लॉक पॉइंटर ही बनाते हैं, आपने देखा है, चाइल्ड पॉइंटर एंड द रिकॉर्ड पॉइंटर. नाउ सी, कंसीडर द शेड्यूल. It may suffer from the dirty read problem. It may suffer from the unrepeatable read problem, lost update problem, or phantom read problem. What is the problem is this? Schedule may suffer from the dirty read, unrepeatable read, lost update, or the phantom read. Lost update or unrepeatable read or phantom read or dirty read. It is lost update problem or dirty read problem on unrepeatable read problem. So here the answer is correct. It is the lost update. Why lost update? Read A किया, it has written the right A. अब it has done some update, लेकिन थोड़ी देर बाद T1 before the commit operation of T2, T1 has overwritten the value of A. So whatever update that has been lost. ठीक है, तो इसको आप क्या बोल रहे हो? इट इज द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम. चलिए, अकॉर्डिंग टू द टू फेज लॉकिंग, व्हेन द लॉक आर नॉट एक्वायर्ड, व्हेन द टू फेज लॉकिंग यदि आप यूज कर रहे हो, सो व्हेन द लॉक्स कैन नॉट बी एक्वायर्ड बिफोर ऑल द रीड एंड राइट एक्शन, बिफोर द लास्ट रीड एंड राइट एक्शन, आफ्टर द फर्स्ट अनलॉक एक्शन, एंड ओनली अपॉन कमिट और रोल बैक. According to the two phase locking, when a lock cannot be acquired, ठीक है, acquire additional नहीं ले सकते आप. So before all the read operation and write action, before the last read and write action,
आफ्टर द फर्स्ट अनलॉक एक्शन, यस यदि अनलॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, इफ द अनलॉकिंग हैज बीन स्टार्टेड, now we cannot acquire the lock because now we are unlocking the lock which is already acquired. So after the first unlock action the lock cannot be acquired. It is the answer C. सेम क्वेश्चन है, आपने अभी सॉल्व किया था. Okay, solve this one. एक मिनट, जस्ट अ मिनट ना. चलिए इसको सॉल्व करिए. कंसीडर द फॉलोइंग 4 शेड्यूल ड्यू टू द 3 ट्रांजेक्शन using the read and the write on the data item X denoted by the RX and WX respectively. Which of them is conflict serializable? ठीक है, which of them is conflict serializable? बन जाएगा. एनलार्ज करूं, विजिबल है. R1X, R2X, W1X, R3X and W2X. R2X, find out which schedule is conflict serializable. रूपा मैम कह रहे हैं नो. रिंकी मैम, ये आप लोगों ने आंसर किया है सी. फर्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट serializable और नॉट. फर्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट serializable और नॉट. क्या बोल रहे हैं? वी हैव रीड ऑपरेशन. अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? when there should be one read one write operation over the same data item. in all transaction data item same है इस particular numerical में, and one both are the operation from the different transaction. ठीक है. सो आपने देखा रीड ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. रीड राइट ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट now it is from the transaction 1, it is from the transaction 1. transaction are similar, conflict will not be there. read 1 write 1, conflict will not be there. read and write, yes, R1 से यहाँ पर R1 से W2 मिल रहा है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? हाँ जी, एक रीड ऑपरेशन है, एक राइट ऑपरेशन है, एंड डेटा आइटम कॉमन है एंड ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम T1 टू T2. ये आपका डन है. अब आप कंपेयर करिए इन दो को. तो अगेन वी हैव R2W1. R2W1 क्या कॉन्फ्लिक्ट है? यस, रीड एंड राइट ऑपरेशन इज देयर एंड ट्रांजेक्शन. ठीक है, डेटा आइटम इज कॉमन एंड ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट, सो देयर इज अ cycle, and if cycle is there it is not conflict serializable. ये conflict serializable नहीं होगा.
यस, आंसर 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या फाइंड आउट करना है, इफ साइकिल इज देयर देन नॉट कॉन्फ्लिक्ट serializable, इफ साइकिल इज नॉट देयर देन इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट serializable। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो ऑल डायग्राम विल बी देयर एंड ऑप्शन डी विल नॉट हैव एनी साइकिल। ठीक है, ऑप्शन डी का ग्राफ बना हुआ है, इट विल नॉट हैव एनी साइकिल। अच्छा मैम, कोई बात नहीं, हाँ जी, इसको सॉल्व करिएगा। व्हाट इज द ग्रेनुलरिटी? ठीक है, व्हाट इज द ग्रेनुलरिटी? द साइज ऑफ द डेटाबेस, द साइज ऑफ द डेटा आइटम, द साइज ऑफ द रिकॉर्ड और द साइज ऑफ द फाइल। व्हाट इज कॉल्ड द ग्रेनुलरिटी? किसका कॉन्सेप्ट नहीं बनता रूपा मैम? आपको ट्रांजैक्शन शेड्यूल का नहीं बनता? मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप लोग से बनता है, इसलिए मैंने नहीं बताया ज़्यादा डिटेल में। व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द ग्रेनुलरिटी? ठीक है, व्हाट इज द ग्रेनुलरिटी? So the size of database, size of data item, size of record. Yes, correct answer is size of data item. Size of data item. एक्चुअली मैम क्या होता है कि आपको शेड्यूल दिए होते हैं, शेड्यूल फ्रॉम द डिफरेंट ट्रांजेक्शन व्हेन वी परफॉर्म द कॉनकरेंट एग्जीक्यूशन। आप चाहें तो मेरा ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का एक सेशन है, उसको चेक कर सकते हो फॉर द डिटेल, लाइक यदि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो जब भी आपको ट्रांजेक्शन दिया जा रहा है, शेड्यूल दिया जा रहा है, एंड दे आर आस्किंग कि वेदर दिस शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट serializable और नॉट, तो हम क्या करते हैं, हम 3 कंडीशन चेक करते हैं एंड हियर वी मेक द ट्रांजिशन ग्राफ। तो जब भी एनी वन ऑपरेशन इज द राइट ऑपरेशन, वी हैव 2 ट्रांजेक्शन। आप हमेशा 2 ट्रांजेक्शन के बीच में कंपैरिजन करेंगे, इट कुड बी T1, इट कुड बी T2, T3, कुछ भी हो सकता है, बट अलग अलग ट्रांजेक्शन होना चाहिए और दोनों में से किसी भी एक का ऑपरेशन राइट होना चाहिए। ठीक है, राइट रीड है या रीड राइट है या राइट ऑपरेशन है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो रीड ऑपरेशन हो रहा है या जो राइट ऑपरेशन हो रहा है वो सिमिलर डेटा आइटम पर हो रहा है या नहीं, सिमिलर डेटा आइटम पर है या नहीं, सिमिलर डेटा आइटम पर है। तो यदि ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि ट्रांजेक्शन नंबर 1 से ट्रांजेक्शन नंबर 2 पर कॉन्फ्लिक्ट है और उसको हम डायग्राम बना देते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके हमको चेक करना होता है। मैं सिर्फ एक समझाऊंगी आपको कि देयर इज अ ट्रांजेक्शन R2 या T2, मुझे कैसे पता चला, यहाँ लिखा है R2 एंड दिस इज द R1। रीड में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा रीड एंड राइट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R2 एंड W2X क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो हमने 3 कंडीशन चेक करनी है। क्या यहाँ पर एनी वन ऑपरेशन राइट ऑपरेशन है? यस, वन ऑपरेशन इज द राइट ऑपरेशन। क्या डेटा आइटम कॉमन है? हाँ, डेटा आइटम भी कॉमन है। क्या ट्रांजेक्शन सिमिलर है? बट द ट्रांजेक्शन आर डिफरेंट, ट्रांजेक्शन आर सिमिलर हेयर, ट्रांजेक्शन आर नॉट डिफरेंट। यहाँ R2 लिखा है एंड W2 लिखा है, मतलब ये जो रीड ऑपरेशन हो रहा है और जो राइट ऑपरेशन हो रहा है दैट इज इन द सेम ट्रांजेक्शन। सो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। देन अगेन आप R1 को कंपेयर करिए, सॉरी R2 को कंपेयर करिए R3 से, रीड ऑपरेशन। नाउ आई हैव W1X, R2 to W1X। ठीक है, तो अब आपने जब चेक किया तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि वन ऑपरेशन इज द राइट ऑपरेशन, डेटा आइटम कॉमन है एंड ट्रांजेक्शन आर डिफरेंट। वन ट्रांजेक्शन है T2 जिस पर रीड ऑपरेशन हो रहा है, T2 जिस पर रीड ऑपरेशन हो रहा है एंड अनदर ट्रांजेक्शन इज T1 जिस पर राइट ऑपरेशन हो रहा है। सो वी विल से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और एरो बना देंगे T2 से T1 पर। डेटा आइटम क्या है? X ही है, वैसे इसमें कोई ज़्यादा आइटम है भी नहीं। सो T2 से T1 हम एरो बना देंगे। ये पहला हमारा क्रॉस चेक हो चुका है, इसको अब हम डन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप नेक्स्ट डेटा आइटम, नेक्स्ट ऑपरेशन लीजिए दैट इज R1X। क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट है? तो आप देखोगे R1 एंड W1, पीछे चेक नहीं करना है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना है। सो R1
W2X क्या कॉन्फ्लिक्ट है? सो यस, this is the transaction from T1 and this is the transaction from T2 and this is the read operation, this is the write operation, so conflict will be there. कहाँ से कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है? T1 से T2 पर कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज पहले T1 का ट्रांजेक्शन आ रहा है, फिर T2 का ट्रांजेक्शन आ रहा है. तो अब हमको अलग से कुछ नहीं करना, इसमें ही एरो ड्रॉ कर देना है. T1 से T2 कॉन्फ्लिक्ट इज देयर. और जैसे ही मुझे यहाँ पर साइकिल मिला, मैं बोल दूंगी इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा. Similarly, you can check for 3, you can check for 4, and in 4 you will not get any cycle after. देखो अभी आपने क्या, पहले आप किसको चेक करोगे? R2X को, फिर W2X को, फिर R3X को, फिर R1X को, सबको चेक करना है. बट हमको जैसे ही साइकिल मिलती है, हम वहाँ टाइम सेव करने के लिए स्टॉप कर देते हैं एंड कह देते हैं कि इट इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. लेकिन जब आप ऑप्शन डी को चेक करोगे तो आपका पूरा ग्राफ ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से. एंड नाउ यू कैन सी कि देयर इज नो साइकिल. ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं है. सो इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल. ठीक है, ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल बनेगा. ओके, चलिए, सो आंसर इज डी. ग्रेनुलरिटी आपने किया. द साइज ऑफ डेटा आइटम इज कॉल्ड द ग्रेनुलरिटी. And next question. Which of the following is true with respect to the functional dependency? Which of the following is true with respect to the functional dependency? A functional dependency is a many-to-one relationship between the two set of attribute. A functional dependency is one-to-many relationship between the two set of attribute. A functional dependency preserve the decomposition is that in which each functional dependency specifies set of function dependencies should only appear directly in one relational schema Ri in the decomposition. None of the above. So functional dependency one to one है, one to many है, many to one है. Simple definition ही देना है. A dependency preserving decomposition is that in which each function dependent X can determine specify the set F of function dependency should only appear directly in one relation of the schema. True statement बताना है. True statement. तो देखिए आंसर इज डी. All statement are false. फंक्शन डिपेंडेंसी ना तो मैनी टू मैनी होती, ना तो मैनी टू वन होती है और ना ही वन टू मैनी होती है. इट इज अ मैनी टू मैनी रिलेशन. ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशन. वाई नॉट ऑप्शन सी? क्योंकि इन्होंने क्या बोला, जब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन की आप बात करते हो, जब आप डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन की बात करते हो, इन दैट केस द डिपेंडेंसी शुड बी प्रिजर्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली भी आपको मिल सकता है और इनडायरेक्टली भी आपको मिल सकता है, बट इन्होंने यहाँ वर्ड यूज किया है अपीयर डायरेक्टली ओनली. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा. Got it? So none of the above. Next we have this question. Consider the B plus tree in which the maximum number of key in a node is 5. Maximum number of key in a node is 5. ये formula based है. The minimum number of key in the non-root node. मिनिमम कितनी अलाउ होंगी? यदि ऑर्डर 5 है तो 50%. मिनिमम नंबर ऑफ की विल बी 50%. 5/2 कर दो
तो इट विल गिव यू 2. ठीक है, हम हमेशा फ्लोर वैल्यू लेते हैं. आंसर विल बी 2. टू 2014, a prime attribute of a relation schema R is an attribute that appears in all candidate key, in some candidate key, in a foreign key, in only the primary key. Prime attribute. Yes, answer is B. Because the prime attribute is the attribute that present in some candidate key. It is not necessary to be in all candidate key. चलिए, what should be the answer? Which of the following form is considered adequate for the normal relational database design? 2NF, 5NF, 4NF and 3NF. Two NF, 5NF, 4NF and 3NF. Which normal form is considered adequate for the normal relational database design? ठीक है, normal relational database design. Yes, it is 3NF. Because we can always a 3NF decomposition which is dependency preserving and the lossless. But higher level के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हो. 3NF आपका dependency preserving भी होता है and lossless भी होता है. Try this. GATE 99. ठीक है, ABCD. अच्छा, मैंने कल आप लोगों को अभ्यास शेयर किया हुआ है. ठीक है, अभ्यास का लिंक शेयर किया है. आई होप कि आप उसको गो थ्रू तो कर लो एक बार. PDF डाउनलोड करके ही कर लीजिए जितना भी आपको टाइम मिल रहा है. ठीक है, लेट R बी द ABCD be a relation of the schema with the following dependency. Which of the following is the key of the R? की क्या बनेगा? D. F is there, A is there, EC is there, it is D and B is there. ठीक है, तो अब आपका बच रहा है C और E. क्या इनका ये पॉजिटिव क्लोजर निकाल लीजिए. वैसे भी ऑप्शन में यही है. यहाँ C मिसिंग है, D मिसिंग है, तो आंसर आपका EC ही होगा. क्लोजर देखने की ज़रूरत नहीं है. Consider the schema R, A, B, C, D and the functional dependency. A can determine B, C can determine D is there. The decomposition is dependency preserving, lossless. Lossless join but not dependency preserving. Dependency preserving but not lossless join. And dependency preserving and not lossless join. लॉसी होगा नहीं होगा, या डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी कि नहीं होगी? ऑप्शन सी. बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप देख सकते हो R1 क्या बन रहा है? A एंड B एंड R2 क्या बन रहा है? C एंड D. तो जब मैं R1 इंटरसेक्शन R2 करूँगी, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट. ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन है इट इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 5. देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, सो इट विल नॉट बी लॉसलेस, इट विल बी द लॉसी डिकम्पोजिशन. सेकेंड थिंग, क्या डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है? सो वी हैव ओनली 2 डिपेंडेंसी. A कैन डिटरमाइन B एंड C कैन डिटरमाइन D. दैट वी कैन हैव डायरेक्टली फ्रॉम हेयर. ठीक है, यहाँ आपको A कैन डिटरमाइन B सेफ है और यहाँ C कैन डिटरमाइन D सेफ है. So yes, it is dependency preserving but lossless.
ठीक है, बट लॉसी ज्वाइन है, लॉसलेस नहीं है, ये लॉसी होगा। Which of the following statement about the normal forms is false? BCNF is stricter than the 3NF. Lossless dependency preserving decomposition into 3NF is always possible. Lossless and dependency preserving decomposition in BCNF is always possible. A relation with two attribute is in BCNF. ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी, यू शुड रिमेंबर देम। ठीक है, तो यदि आपने पहले कभी इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो इसमें जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हाट इज द आंसर हियर? इट इज अगेन सी, अगेन सी। देखिए जो BCNF होता है ये आपको पता है, इट इज स्टिकर देन द 3NF, बिकॉज यहाँ आप क्या बोलते हो, द की शुड बी सुपर की, द की शुड बी सुपर की। लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग decomposition is possible up to possible in 3NF. This statement is true. But we cannot say this thing about the BCNF. We cannot say anything about the BCNF. And any relation with two attribute is in BCNF. Yes, this statement is true. यदि आपके रिलेशन में सिर्फ दो एट्रीब्यूट हैं A and B, तो ये हमेशा BCNF में होगा, ये आपका हमेशा BCNF में होगा। ठीक है, तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन इज नॉट, we cannot say anything about, we cannot say anything about in BCNF. Dependency preserving होगा, but we cannot say about anything about lossless decomposition. Now ER diagram, ER diagram बन जाएगा। ये सिंपल है, वन टू मैनी रिलेशन है, बट थ्योरी आपको रीड करनी पड़ेगी। Consider the following entity relationship diagram when the two entities E1 E2 have R is the cardinality. So one to many है, yes, very good. 3 tables will be there. कैसे? देखिए E1 has the 3 attribute, E1 has the 3 attribute, ड्रॉ कर लेते हैं। We have A11, A12 and A13, ये आपके 3 एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, एंड A1 इज द की, A1 is the key. E2 has 3 attribute, E2 have 3 attribute, A21, A22 and A23, and A21 is a key. Now A23 is a multi-valued attribute. A23 आपका क्या बन रहा है, multi-valued attribute. The relation R does not have any attribute. The relation database contains minimum number of tables, that each table satisfying the requirement of third normal form from the above diagram. तो whenever we have one to many relationship, ठीक है, जब भी आपका क्या बनता है one to many relationship, relation is always in the many side. relation आपका कहाँ चला जाता है, many side पर, पहली चीज। then जो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है इसके लिए आपकी सेपरेट टेबल बनती है, एंड एक टेबल बनेगी द रिलेशन E1 दैट इज ऑन द वन साइड। तो जब E1 बन रही है, E1 इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, इसका एट्रीब्यूट बनेगा A11, A12 एंड A13 विद प्राइमरी की A11। ठीक है, नाउ दूसरा रिलेशन आपका बनेगा RE2, रिलेशन कहाँ मर्ज हो जाएगा, E2 के साथ। इसमें क्या एट्रीब्यूट आएंगे, सो वी हैव A21 इज अ प्राइमरी की, A22 विल बी देयर, एंड नाउ आई हैव
द रेफरेंस ऑफ E1 इज ऑल्सो देयर, क्योंकि आप रिलेशन को मर्ज कर रहे हो. सो A11 विल बी हेयर. नाउ द थर्ड रिलेशन इज E2 A23. E2 A23. ठीक है, तो ये जो A23 है ये आपका एट्रीब्यूट है. Here what will be the attribute? The primary key A21 and the attribute A23 will be there. तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल टेबल कितनी बनेगी? 3. इट इज ऑलवेज इन 3NF सर, ये लिखा हुआ है. ठीक है, जो ER डायग्राम से जब आप रिडक्शन करते हो, जो टेबल्स आपको मिलती हैं वो हमेशा किस में होती हैं? वो हमेशा आपकी होती हैं इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. अ रिलेशन, ये लिखा है, अ रिलेशन डेटाबेस कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ टेबल ईच दैट सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, सो आंसर आपका बन जाएगा 3 टेबल्स एंड द टेबल्स विल ऑलवेज बी इन 3NF. Thomas Wright rule is 2-phase locking protocol, timestamp protocol, 1-phase locking protocol or sliding window protocol. सर फॉर एवरी क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया था. एक क्वेश्चन आपको कराया था कि यदि आपके पास ही रहा कि आपने ही आंसर किया है कि विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर द नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस. इट इज 3NF. एक क्वेश्चन और है यहाँ पर. ठीक है, कि जब आप डेटाबेस को रिड्यूस करते हो, जब आप किसी ER डायग्राम को रिड्यूस करते हो इनटू द डेटाबेस, ठीक है, तो वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में होता है? वो 3 नॉर्मल फॉर्म में होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है. हाँ, it is time stamp protocol. Thomas Wright rule is a time stamp protocol. Very good. Now solve this one. Consider a table RAB with the primary key AB. Which of the following statement will execute successfully? If we have a primary key आपकी A and B है, तो कौन कौन सी वैल्यू सक्सेसफुली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी? Insert into RAB values is null 105. Insert into RAB value is 4 and null. Insert into RAB the values is 1 and 105. Yes, only 3, because A and B are the prime attribute. So prime attribute cannot be null. So only third insertion is possible. ठीक है, कंपोजिट की में जो एट्रीब्यूट है वो नल नहीं हो सकते. What is the answer for this? 2-phase locking protocol is optimistic protocol. 2-phase locking protocol is pessimistic. 2-phase time stamping is optimistic. Time stamping is pessimistic. Yes. What should be the answer? ए नहीं भाई, ए नहीं होगा. करेक्ट पूछ रहे हैं ना. देखिए, जो वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल इज ओनली नोन एज द ऑप्टिमिस्टिक प्रोटोकॉल, क्योंकि हम वहाँ पर एक उम्मीद करके चलते हैं कि जो वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरीफाइड. तो हम एक ऑप्टिमिज्म लेकर चलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ऑप्टिमिस्टिक प्रोटोकॉल. अदर देन ऑल दीज आर द पैसिमिस्टिक. ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं
वो आपके क्या है, पैसिमिस्टिक है. सो वैलिडेशन स्कीम इज कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी स्कीम सिंस द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ऑप्टिमिस्टिकली. हाँ, so assuming they will not able to finish the execution and validate at the end, they will be able to finish execution and validate at the end. So this is what my optimism हम जो consider करते हैं in validation scheme. ठीक है. So in contrast लॉकिंग प्रोटोकॉल, टाइम स्टैंपिंग प्रोटोकॉल, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, इट इज़ योर पैसिमिस्टिक. ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, पैसिमिस्टिक होते हैं. तो आंसर क्या होगा, बी. ठीक है. हाँ जी, ये तो बनता है नवंबर 2017. सपोज अ डेटाबेस शेड्यूल एस इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन T1 T2 अप टू Tn. कंसिडर द प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ एस with vertices representing the transaction and edges representing the conflicts. अभी जो हमने किया था. ठीक है. If S is serializable, which of the following ordering of vertices of the precedence graph is guaranteed to yield a serial schedule? It is topological sorting, topological ordering, है ना, topological sorting or the topological ordering. Very good. Transaction manager is which of the following? A transaction manager is maintain the log of the transaction, maintain before and after database images, maintain appropriate concurrent control, or maintain all of the above. ट्रांजेक्शन मैनेजर, नाम ट्रांजेक्शन मैनेजर है, क्या काम करना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव. वेरी गुड मैम, ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है. एक ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सॉरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. देखिए गेट 2007 का है, 1919 गेट 1997 का है. इसरो में पूछा जा चुका है, नेट में पूछना चाहिए इनको. तो इन्होंने क्या बोला कि RABC and SDEF be the two relation which D is the foreign key of S that refer to the primary key of S. ठीक है. तो D आपकी क्या है, foreign key है. You have a relation R, A, B and C. You have a relation S, D, E and F. अब D एक primary key है. D is a key that is referring to the primary key of R. किसी को भी मान लेते कि A is the primary key of R. ठीक है, ये इसको रेफर कर रही है. ठीक है. अब which of the following four operation, which of the following can cause the violation of referential integrity constraint? violation of referential integrity constraint किस condition में होता है? insert into R. insert into R. I am inserting a new key into R. new key values will be there. तो क्या insert into R conflict create करेगा? ठीक है, पहली चीज. now insert into S. क्या आप एक फॉरेन की को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो? क्या बोल रहे हैं लोग, पर एक चीज मैं देख लूँ. D relation in which D is a foreign key of S that refer to the primary key. तो प्राइमरी की किस में है, R में है, और फॉरेन की किस में है, फॉरेन की आपका है S में है. ठीक है. तो देखिए जब भी आप फॉरेन की में इंसर्ट करोगे इट विल वायलेट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. why because S should have the value from the key attribute of the relation R. इसको रेफर कर रहे हैं तो S की वैल्यू कहाँ से लेनी चाहिए, R से लेनी चाहिए. बट यदि हम यहाँ इंसर्ट करेंगे तो इट विल वायलेट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. delete from the R. So if you delete any key attribute, it will also impact the relation S. So delete from the R, it will violate the referential integrity constraint. Delete from S is okay. So yes, these are the two conditions which will cause the violation of the referential integrity. Very good, everyone. December 2019. December 2019,
फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स आपसे बनता है ना, वही क्वेश्चन है जो अभी आप सॉल्व करके आए हो। अगेन 1 to many रिलेशन है एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो 1 to many के केस में एक टेबल आपकी मैनी साइड पर बन जाएगी, एक टेबल R1 बनेगी और एक टेबल B के लिए बनेगा। तो नंबर ऑफ टेबल्स विल बी, ओ माय गॉड ये क्या होगा, नंबर ऑफ टेबल्स विल बी 3। ठीक है, नंबर ऑफ टेबल्स आपकी कितनी हो जाएगी 3। नेक्स्ट वी हैव दिस वन, हडूप। हडूप बिग डेटा नो एसक्यूएल मैंने पढ़ाया है और अभी आप लोगों से लिंक भी शेयर किया था टू डू द रिवीजन। ठीक है, आप आई होप कि सबके पास लिंक है। देखिए, हडूप और अ बिग डेटा टूल वर्क्स इन द नंबर ऑफ रिलेटेड टूल। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन टूल दैट इंक्लूडेड इन हडूप। SQL, Google API, MapReduce. MapReduce, Scala, Hammer. MapReduce, HBase and the Hive are the component of Hadoop. ठीक है, ये आंसर सी है। ये आपके पास डायग्राम है, इससे आप नोट डाउन कर सकते हो कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द हडूप। MapReduce इज देयर, ड्रिल इज देयर, महाउत इज देयर, HBase है, पिग स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं, स्पार्क टूल है, स्टॉर्म टूल्स है और इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है वो भी मेंशन है। रिसोर्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यान की होती है। स्टोरेज के लिए आप HDFS फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मैंने पढ़ाए हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन, December 2018, an attribute A of the data type varchar 20 has the value XYZ and the attribute of data type character has the value of LMNOP. So how many space is required? तो देखिए varchar में क्या होगा, it depends on the length of string, तो 3 space are required. But in the case of character, number of character is fixed to 20. So answer is 3 and 20. Very good. Answer is 3 and 20. Okay. Blank space command, December 2018. Blank space command is used to remove the relation from the SQL database. Relational database. Drop table, delete table, remove table or the update table. Delete table, remove table, update table. So a drop table is used. Yes. डिलीट क्या करेगा, डिलीट इज ओनली गोइंग टू डिलीट द डेटा फ्रॉम द टेबल। बट यदि आपको कंप्लीटली टेबल को रिमूव करना है, सो वी विल यूज द ड्रॉप टेबल कमांड। ठीक है, आप क्या यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल कमांड वी विल यूज। सो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। डेटा स्क्रबिंग, डेटा स्क्रबिंग इज फ्रॉम द डेटा माइनिंग। एक क्वेश्चन आता है डेटा माइनिंग, बिग डेटा, इस टाइप के टॉपिक से। सो डेटा स्क्रबिंग इज अ प्रोसेस टू रिजेक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस एंड टू क्रिएट द नेसेसरी इंडेक्स। अ प्रोसेस टू द डेटा लोड द डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस एंड क्रिएट द नेसेसरी इंडेक्स। अ प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ द डेटा आफ्टर इट इज मूव्ड इनटू द डेटा वेयर हाउस। अ प्रोसेस ऑफ अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेटा बिफोर इट इज मूव्ड इनटू द डेटा वेयर हाउस। C or D? C or D? It is D. डेटाबेस में लोड करने के पहले ही डेटा स्क्रबिंग किया जाता है। ठीक है, इनकरेक्ट, इम्प्रॉपर। सो द प्रोसेस इज कैरिड आउट बिफोर द डेटा इज मूव्ड इनटू द डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस। ठीक है, हाँ जी, आंसर इज डी। A clustering index is defined on the field which are of the type. Clustering index का मैम डेटा वेयर हाउस में आपने जो क्लीनिंग है ना, क्लीनिंग डेटा लोड करने के पहले परफॉर्म की जाती है। डेटा क्लीनिंग बिफोर द डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस पर लोड करने के पहले डेटा क्लीन किया जाता है। हाँ,
So clustering, a clustering index is defined on the field which are of the type non-key ordering, key ordering, नॉन की एट्रीब्यूट होगा और ऑर्डरिंग होगा, या नॉन की और नॉन ऑर्डरिंग होगा, की एट्रीब्यूट होगा, ऑर्डरिंग होगा, की होगा या नॉन ऑर्डरिंग होगा. सो जो प्राइमरी इंडेक्स है वो की और ऑर्डरिंग होता है, बट क्लस्टरिंग इंडेक्स इज नॉन की और ऑर्डरिंग इज देयर. नॉन की होगा एंड ऑर्डरिंग विल बी देयर. देखिए जून 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं. ठीक है. मैच द लिस्ट 1 to the list 2. मैच द लिस्ट विद द 1 विद द लिस्ट 2 हो जाएगा ना. दिस इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. हाँ, दिस इज वीक एंटिटी. This is the primary attribute. This is multi-valued attribute, and this one is the total participation. Solve this one. ये अभी मैंने आपको बताया है. हाँ जी, आंसर क्या बनेगा इसके लिए? आंसर इज बी. ठीक है, देख लेते हैं. देखिए, एटलीस्ट वन ऑपरेशन शुड बी द राइट ऑपरेशन. अभी आपको बताया था रीड राइट, राइट रीड या राइट ऑपरेशन होना चाहिए. नेक्स्ट, द बोथ द ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन द सेम डेटा आइटम. यस, एंड बोथ द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द डिफरेंट ट्रांजेक्शन, बट both the operation performed on different data item doesn't matter. तो आंसर आपका बनेगा A, B and C. 2020 में डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा था आपको. आंसर इज B. Now what should be the answer for this? Following table has the attribute employee ID and the manager ID. ठीक है, सो देखिए क्या आंसर बनेगा. Employee ID is the primary key and manager ID is the foreign key. Referencing the employee ID on delete cascade. On deleting 2040, the set of the tuple that must be deleted to maintain the referential integrity. 2040 को डिलीट कर रहे हो, 2040 को आप डिलीट कर रहे हो, तो फिर एम्प्लॉय आईडी जहाँ 20 रेफर की जा रही है वो भी आपका डिलीट होगा. ठीक है, तो अब आप किसको डिलीट कर दोगे? 20 को रेफर कौन कर रहा है? दिस वन यहाँ यूज हो रहा है, दैट इज 35. ठीक है, अब क्या कोई एडिशनल रो डिलीट होगा? तो इफ यू आर डिलीटिंग द 35, यदि आप यहाँ 35 डिलीट कर रहे हो, सो वी विल ऑल्सो डिलीट द 30 बिकॉज 35 इज हियर. 35 एंड 30. अब किसी और को डिलीट करेंगे क्या? तो 30 इज नॉट रेफरेंस्ड हियर. अभी 30 का रेफरेंस नहीं आया. So answer is 30, 35 and 35, 20 will be deleted. ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा 30, 35 and will be deleted. This is June 2019.
K-mean clustering algorithm has clustered with the 8 observation into the 3 cluster after the first iteration is. ये आपका क्लस्टर का फर्स्ट इटरेशन में हमने 8 डेटा आइटम को अरेंज किया. Now what we have to calculate? We have to calculate the Manhattan distance of the observation from the centroid C1. तो मुझे ये जो कैलकुलेशन करना है, मैनहट्टन डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन करना है, वो सिर्फ किसके लिए करना है? C1 के लिए परफॉर्म करना है. ठीक है, दैट वी हैव टू ओनली परफॉर्म फॉर C1. ठीक है. Okay, so now see what will be the answer. बनता है ये. देखिए, here we have to apply the formula. फॉर्मूला क्या होता है कि आपने सबसे पहले तो C1 का सेंट्रॉइड निकाला. C1 का सेंट्रॉइड आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? द सेंट्रॉइड फॉर द C1, क्योंकि इन्होंने जो मैनहट्टन डिस्टेंस पूछा है, दैट इज दे आर आस्किंग फॉर द क्लस्टर सेंट्रॉइड ऑफ द C1. तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको 3 को ऐड करना पड़ेगा 5 से, ऐड करना पड़ेगा 7 से, तो इट विल गिव यू 3 + 5 7 डिवाइडेड बाय 3 and again 3 + 5 + 7 divided by 3. When you will solve this one, you will get 5,5 as a centroid of the C1. सिर्फ अभी C1 की बात हो रही है. इसी तरीके से आप इनका भी सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं. अब सेंट्रॉइड निकालने के बाद आपको ये बोल रहे हैं कि मैनहट्टन डिस्टेंस किससे निकालना है? 4 4 से. तो ये डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है. ठीक है, मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है? वेरी गुड. मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास बनता है द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यू, 4 4 एंड 5 5 के बीच में जो डिस्टेंस. Now solve this one. Database system store each relation in a separate operating system file system may use the operating system authorization scheme instead of defining the special scheme themselves. In these cases, which of the following is false? The administrator enjoy the more control on the agent option. It is difficult among the update, delete and insert the authorization. Cannot store more than one relation in a file. Operation on the database is speed up as the authorization procedure is carried out at the operating system level. Yes, answer is A. Administrator का काम बढ़ जाएगा. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम बढ़ जाएगा. He is not going to increase. ही इज़ नॉट गोइंग टू इन्जॉय, बिकॉज ये बोल क्या रहे हैं कि आपने क्या किया, जो डेटाबेस सिस्टम था इसको आप स्टोर कर रहे हो. स्टोर ईच रिलेशन मतलब हर एक टेबल ऑन द सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, एंड सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल आप यूज़ कर रहे हो, एंड हेयर यू आर परफॉर्मिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लेबल ऑथराइजेशन. ठीक है, सो यस ऑब्वियसली टेबल्स को अपडेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, डिलीट या इंसर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. कैन नॉट स्टोर मोर देन वन रिलेशन इन अ फाइल, ये तो डेफिनेशन में ही दिया हुआ है. एंड ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस इज स्पीड अप, क्योंकि अब जो ऑथराइजेशन का है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो जा रहा है. सो ऑथराइजेशन प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड. सो ऑल 3 आर करेक्ट, ऑल 3 आर वैलिड, बट एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट गोइंग टू एंजॉय सच थिंग. ठीक है, बिकॉज नाउ उसका जो काम है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो वो इंक्रीज हो जाएगा. द लास्ट क्वेश्चन आई हैव, द 5 records are given, there are the index file associated with this and it contain the value 1 1 2 4 3. which of the following fields is the index built from? सिंपल क्वेश्चन है.
कल सैटरडे है, मॉर्निंग सेशन नहीं रहेगा 7:30 वाला, बट वी विल कंडक्ट द प्रैक्टिस सेशन एट 10:30 AM वेयर वी विल सॉल्व द 2020 पेपर। एंड आई होप कि आज नाइट तक या कल तो फाइनली आप लोगों का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट्स भी शायद वो रिलीज़ कर दें। सो इट विल बी ग्रेटफुल फॉर अस, ठीक है, अच्छा होगा कि लाइक बेनिफिशियल फॉर अस कि हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो कल आप 2020 सॉल्व करते हैं। ऑन संडे देयर विल बी द लाइव मॉक क्विज एट 7:30 AM, ठीक है। देखते, उम्मीद है आज आ जाएगा। सो वी हैव इंडेक्स वैल्यू दी है 1123243। एज के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हुआ है क्या, तो मिनिमम एज क्या है 24 है, नहीं 22 है। तो ए क्या होना चाहिए 1 यहाँ आएगा, फिर 24 पर आपका 2 आएगा, फिर उसके बाद 27 पर 3 आएगा एंड 30 यहाँ आपका 4 बनेगा एंड यहाँ आपका क्या बनेगा 5। सो दिस विल बी द सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव नेम। यदि नेम देखते हैं तो ए से आपका अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, दिस इज़ 1। देन अभी आप देखो, वैसे तो रिपीटेड वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ए आपके नेम पर बेस्ड नहीं है क्योंकि दिस वैल्यू इज़ 1 यहाँ सेकंड से 1 स्टार्ट हो रहा है, ए कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, सो 1 आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली क्या ये ऑक्यूपेशन पर बेस्ड है, सो इफ सपोज C इज द स्मॉलेस्ट वन, आप इससे भी स्टार्ट करते हो, तो D इज द 2, 1 रिपीट नहीं होगा, बट हेयर वी हैव 1, A इज 1, B इज 2, देन C इज 3 एंड D इज 4। तो यस, जो हमारी इंडेक्सिंग की गई है वो किसके बेसिस पर की गई है, कैटेगरी पर। अरे डेट शीट ही मान लो मैम, एग्ज़ाम डेट शीट बात एक ही है, एडमिट कार्ड ही दे दें अभी तो हम लोगों को, वो और भी सही रहेगा। चलिए देखते हैं क्या देते हैं, ठीक है। सो this is that session on database management system. If you want to learn, if you want to do more practice on DBMS, then you can go for the अभ्यास सेशन जो मैंने कल आपसे शेयर किए थे, ठीक है। तो अभ्यास सेशंस को देख लीजिए, 3 सेशंस होंगे ऑन यूनिट नंबर 4 एज वेल, है ना, तो वो आप देख सकते हो, एडिशनल लर्निंग यदि आपको करनी है। चलिए देखिए, आज वेट करते हैं, आज और कल इतना तो उम्मीद है कि इतने में वो शेड्यूल तो हम लोगों को बता देंगे, एग्ज़ाम डेट बता देंगे कि कभी एग्ज़ाम लेते हैं। हाँ, आप लोग तो रेडी हो, तैयार हो, एग्ज़ाम देना ही है। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम संडे, टाइमिंग विल बी 7:30 AM। कुछ लोगों का ट्रैवलिंग वगैरह का रहता है ना मैम, इसलिए पहले एडवांस में डेट पता चल जाए तो अच्छा रहता है। चलिए एंड करूँ फिर सेशन। एनी क्वेरी इन दिस सेशन? Thank you everyone for your time. Have a great day. You can download the PDF from the link that is given in the description box. ठीक है, and you can also join me at Telegram group, Facebook group or WhatsApp group. Link is provided into the description box. Thank you. अब शाम को 6:30 PM पर है, नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, 6:30 PM। अगेन PYQ बेस्ड सेशंस विल बी देयर 6:30 PM, ठीक है। चलिए।